Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. I'm back on the Creatrix YouTube channel with the Crack Technical Interview episode number 3. तो इस सेशन के अंदर अगेन बेटा मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं. We will be discussing these 5 questions that can be asked in your interview and how you should be answering each of these questions whenever the examiners put forward these questions. So let's get started here, students. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE. I was awarded gold medal by President of India when I graduated from IIT. Till date, I have mentored over 2 lakh students for GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. Now most of the students already know these things about me. But I say what matters the most, guys? What matters the most is that our team, the entire Unacademy team, the Creatrix team, is working really hard in order to make sure that our students always stay ahead of the competition. They are able to crack as many exams as they want. They are able to top the exams and they are never behind any other students. Be it in terms of knowledge, be it in terms of the ranks, हर तरह से हमारे बच्चे सबसे आगे रहें. और इसी के लिए बेटा इतने सारे इनिशिएटिव आपके लिए लेके आते हैं. और ये ध्यान रखना, इनिशिएटिव सिर्फ आपको YouTube पे नहीं मिलते हैं बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी मिलते हैं. इसीलिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल रखिए और हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को देखिए. बस उन्हें अनलॉक करना रहेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है बेटा. यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे. जो आगे होने वाली हैं वो अपकमिंग में मिलेंगी और जो हो चुकी हैं वो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मिलने वाली हैं. तो चेकआउट जरूर करना. गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PSUs के प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है. चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर स्टूडेंट्स. इंटरव्यू क्वेश्चंस एपिसोड नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What is the core material used for high frequency low power transformer construction? अब बेटा देखो यहां पे आंसर बड़ा सिंपल है. We make use of ferrites. लेकिन how can you make this answer interesting? That is the main question. The first thing that you are going to tell that in high frequency transformer we have a problem of high eddy current losses. Why? Because the expression for eddy current loss says that it is proportional to F square. Okay, that will be your first point बेटा. फर्स्ट पॉइंट में आपने बोला एडी करंट लॉस F स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. इसीलिए एक प्रॉब्लम ये आती है हाई फ्रीक्वेंसी पे एडी करंट लॉस बहुत हाई हो जाएगा. Now, in order to reduce eddy current loss, we need to use a material which has high resistivity. क्योंकि अगर आप रो बढ़ाओगे, then you can reduce the eddy current loss. तो हम ये कहते हैं increase rho to reduce PE. बहुत सिंपल वे में बातें करनी है. पॉइंट्स की टर्म में कोई भी आंसर को फ्रेम करो ताकि आप उसको इजीली आंसर भी कर पाओ और आपके माइंड में ये भी रहे कि आपने सारे पॉइंट आंसर के कवर किए. तो यहां पे आप लोग क्या बोलोगे फिर? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और फेराइट्स विल बी यूज्ड एज दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू हेल्प रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस. ठीक है. अब इसके अंदर आप ये भी बता सकते हो, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि इनका रिलेटिव परमिएबिलिटी लो होता है बट दे आर यूज्ड फॉर लो पावर एप्लीकेशन. So high BM is not required. Okay. So you do not need actually high flux density. And that is why you are not worried about low permeability. Okay, you are not worried about low permeability because you are anyways not going to use it for high voltage, high power. So that also you can add, but this will be an optional point to be added
that only depends if you wish to add it or not. It's not a necessary one, but these two things are very very necessary. Okay, next question beta. What is the shape of armature MMF in a DC machine? बेटा आप यहां पे ज्यादा नॉलेज मत दिखाना, क्योंकि यहां पे अगर ज्यादा नॉलेज दिखाने जाओगे देन यू कैन डेफिनेटली गेट स्टक्ड. आप क्या बताएंगे यहां पे? आर्मेचर एमएमएफ का जो वेव फॉर्म होता है, ये एक्चुअली एमएमएफ है, दैट इज ट्रायंगुलर इन नेचर. ठीक है, अब ये मत बताने भिड़ जाना कि अगर हम एम्पियर्स लॉ से निकालें तो ट्रायंगल आता है. यू डोंट नीड टू डू दैट. व्हाट यू कैन से दैट फील्ड एमएमएफ or field flux density is flat topped in nature. Armature MMF is triangular. Okay, armature MMF is triangular in nature with the maximum value at q axis and it passes through 0 at d axis. इतना इंफॉर्मेशन काफी है बेटा कि क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, डी एक्सिस पे 0 होता है और शेप इसका ट्रायंगुलर होता है. बट इफ यू गो इन एनी मोर डिटेल देन व्हाट विल हैपन इन सच अ सिनेरियो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू एक्सप्लेन हाउ यू गॉट दिस ट्रायंगुलर, एंड ऑल्सो द एग्जामिनर और द इंटरव्यूअर माइट हिमसेल्फ नॉट अंडरस्टैंड हाउ डू यू गेट दिस ट्रायंगुलर शेप. सो नो नीड टू एक्सप्लेन इट. थर्ड क्वेश्चन, how the direction of rotation of a DC series motor can be reversed. Now my dear friend, एक DC series motor की अगर बात करें तो वहां पे ना IF और IA बराबर होते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होगी कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है. आप ये एनॉमली बता सकते हो पहले बिफोर गिविंग योर आंसर, that sir the first problem that we face with DC series motor is that torque is proportional to IA square. So by reversing armature current we will not be able to reverse the torque and hence we will not be able to reverse the rotation. तो ये चीज आप बता सकते हो. बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि करंट रिवर्स कर देने से मोटर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. But you can say to them, by reversing IA, we cannot reverse torque. ठीक है, तो यहां से ना बेटा एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि भाई बच्चे को मालूम है, मतलब आगे पीछे की चीजें. ऐसा नहीं है कि बस जो है ना एक पॉइंट आंसर दे दिया, क्योंकि बेटा इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन. नेवर एवर थिंक ऑफ इंटरव्यू एज अ Q&A राउंड. इट इज अ कॉन्वर्सेशन. तो वहां बातचीत करना जरूरी है. तो फिर रिवर्स कैसे करें सर? मेन पॉइंट पे आओ. रिवर्स करने के लिए क्या करो? फील्ड वाइंडिंग को पलटो. यानी यू हैव टू रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग सो दैट इवन दो इट विल कैरी द सेम करंट, इट्स फ्लक्स विल बी ऑपोजिट. ये बात ध्यान रखें, भले ही फील्ड वाइंडिंग सेम करंट कैरी करे, बट अगर वाइंडिंग को पलट दिया जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा. ठीक है, so interchanging field terminal, but interchanging armature terminal हो सकता है, सप्लाई टर्मिनल तो नहीं बेटा. सप्लाई से IA रिवर्स होगा और उससे कुछ नहीं होगा. तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सप्लाई टर्मिनल एक्सचेंज कर देंगे तो भी काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर करंट रिवर्स हो गया ना तो इन दैट केस द टॉर्क विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन. हाँ भाई, what is hunting in synchronous machine? Now this is a question where you don't need to show much of your knowledge. This in itself is a answer, है ना? मतलब ये काफी बड़ा आंसर खुद में है, आपको यहाँ ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? Hunting is a phenomena in which a synchronous motor hunts for its new steady state position whenever we make a sudden change. जब भी हम सिंक्रोनस मोटर के अंदर कोई सडन चेंज करते हैं और वो अपनी नई स्टेडी स्टेट पोजीशन को ढूंढती है, दैट इज टर्म्ड एज हंटिंग. बट बच्चों मेरी बात पे ध्यान देना, मेरी बात पे गौर करना. यहाँ पे आपको अपने शब्दों में, भले हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में,
स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जब अटक जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, तो आप अपना आंसर, अपनी नॉलेज शो नहीं कर पाते हो। इसीलिए तोल मोल के बोलो बेटा, उतना ही बोलो जितना भले ही जरूरी है, लेकिन बोलो स्पष्ट, है ना। क्या बोलोगे? whenever we make a sudden change and a synchronous motor hunts for its new steady state position, then it is termed as hunting. What kind of sudden change it can be? A sudden change in load, a fault in the supply system, a load containing harmonic torque, a sudden change in field current. सर क्या इतने सारे फैक्टर याद करने पड़ेंगे? नहीं बेटा, अगर याद ना भी रहे तो आप क्या कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए? You can make use of swing equation. So what you can say, sir, that the right hand side actually represents accelerating power. What it represents? Accelerating power. So in such a scenario, sir, when this represents accelerating power, so whenever there is sudden imbalance between PS and PE, then hunting occurs. और ये सारे जो कॉजेज है ना, तो ये इम्बैलेंस के कारण है PS और PE। तो आप पता है आंसर को अप्रोच कैसे कर सकते हो? आप आंसर को अप्रोच करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे हंटिंग क्या है? whenever a synchronous motor hunts for its new steady state position, it's known as hunting. Why does it happen? Due to sudden imbalance between PS and PE. What can be the causes of sudden imbalance? Sudden change in load, fault in the system, load containing harmonic torque, fault in the field system और sudden change in field current. ठीक है, तो ये 3 स्टेप के अंदर हम आंसर दे देंगे। लास्ट बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल? अब इस आंसर को आप बहुत अच्छे से फ्रेम करके दे सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? समटाइम्स व्हेन वी आर डिजाइनिंग आर्मेचर वाइंडिंग, we might be using a certain number of slots, but armature might have more than required number of slot. कभी कभी जब आर्मेचर वाइंडिंग बनाते हैं, हम हो सकता है कुछ स्लॉट यूज कर रहे हैं, बट आर्मेचर में उससे ज्यादा स्लॉट्स हैं। इन सच अ सिनेरियो वी नीड टू प्लेस डमी कॉइल इन रिमेनिंग स्लॉट्स so that the mechanical balance of the rotor can be maintained. बहुत easy है। First thing, dummy coils are used in DC machine. Where they are used? When we are using lesser number of slots than available on the armature. Why they are used? They are used to maintain mechanical balance. One more point you can add. They are not connected to commutator, so they do not take part in energy conversion. बहुत सिंपल सी बात है। They are not connected to commutator और brushes. क्लियर हो गया भाई? तो इस तरह से अगर स्टेप्स में अपने आंसर को फ्रेम करोगे, कोई भी चीज के बारे में पूछा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट, वेयर इज इट यूज्ड, व्हाई इज इट यूज्ड, इस टाइप से, है ना। जब पर्पस पूछे तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये 3 क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव जाने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये तो हुई एपिसोड नंबर 3 की बात। फिर से मिलना होगा आपसे एपिसोड 4 के अंदर। और बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये इनिशिएटिव्स जब वायरल होते हैं, जब फैलते हैं, तभी इस तरह के और इनिशिएटिव्स प्लान करने का सेंस बनता है। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम बेटा। और जो भी बच्चे मुझसे मशीन पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से प्लस पे आ जाओ बेटा। हमारा मशीन का कोर्स बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है और नया कोर्स पावर सिस्टम का आने वाला है। तो 7 AM to 9 AM और 10 AM to 12 noon हम लोग रन कर रहे हैं। 2 PM मैं आपको मशीन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और 5 PM आपके डाउट्स भी आंसर कर रहा हूँ। तो अगर मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट यू शुड डू। ठीक है, और बेटा ये ध्यान रखें, 15 अगस्त यानी कल कॉम्बैट होने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अंकित ESE कोड से एनरोल कीजिए और कॉम्बैट में अच्छा करने पे यू कैन विन 100% स्कॉलरशिप। इसके अलावा बेटा आपके लिए बार्क की फ्री टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। आज इसका टेस्ट पहले वाला हो गया है। सेकेंड टेस्ट इज ऑन नेक्स्ट सैटरडे एंड द थर्ड विल बी ऑन 28th of August, which will be a full mock test.
और you can follow me on Unacademy app. You can message me here at Ankit2047. This is my Telegram channel जहां हम daily quizzes कराते हैं. You can also become a part of daily quizzes and learn electrical engineering with me. So thank you everyone. Please do like, share, subscribe and comment below the video. If you like the video, I'll come back soon with episode number 4 and we'll again enjoy. I hope you liked the video and you got benefited by it. तब तक बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहो, मचाते रहो. लेट्स क्रैक इट.